जी हाँ। श्री यशवंत सिन्हा, शौक है बोलने पर खड़े होते। Madam Speaker, Saturday, the 6th of April 2010, will go down in our internal security history as a black day. 73 policemen were ambushed and killed by the Maoists in the jungles of Mukrana in the Dantewada district of Chhattisgarh. This is the single largest casualty of the security forces in one incident in a few hours. Never before in independent India's history have so many security forces lost their lives in a single operation by any rebel group. Therefore, it was not only a black day, it was also a day of shame for all of us. Not only were 73 precious lives lost, but in the jungles of Mukrana, the Indian state was challenged. It represented the failure of Indian democracy, of the Indian Constitution, of all our development efforts, and the style of governance of this government. Madam, our hearts go out to the martyrs who lost their lives in Dantewada. We condole their deaths. We expressed our deepest sympathy to their families. And I'm very happy, satisfied, Madam, that you mentioned it at the beginning of the day today, and the whole House has condoled their deaths. Our hearts go out to the martyrs. Immediately after the incident took place, our party came out with a statement in which we declared that we stand firmly with the government. We stand firmly with the government in this fight against the Maoists. News came that Honorable the Home Minister had submitted his resignation. Our party came out with a statement saying it was not the time for the Home Minister to resign. He cannot run away from the battle. He must stay at his post and join the country in fighting the battle, in fact, lead the country in fighting this battle. So we stood up with the Home Minister, we stood up with the government. The point which comes to our mind is, while the opposition is with the government in this fight, is the Congress party with the government? Is the UPA with the government? This is the question. Because yesterday we saw an article written by one of the general secretaries of the Congress party in a prestigious newspaper. It was an edit page article, specially published just one day before this session was to reconvene. He has said many things. The things that he has said about the BJP, we reject with contempt. But he has said things about the Home Minister. He has described him as intellectually arrogant.
he has said that he has been a victim of his intellectual arrogance. I don't know how he has been a victim of his intellectual arrogance. He has challenged, madam, he has challenged the entire policy of the government on this Maoist menace. He's challenged. He has talked about collective responsibility. And when a senior leader, an office bearer of the Congress party, which is leading this coalition, challenges government policy, he is not merely challenging, madam, the Home Minister, he is challenging the whole government. He himself has talked about collective responsibility. And if the principle of collective responsibility applies in a parliamentary democracy, then is the Prime Minister of the country outside of it? Is the Finance Minister of the country outside of it? Is the Cabinet outside of it? The question, the supreme question today, madam, is that when we need to stand together in this fight, the ruling coalition stands severely divided. They stand divided. There are other elements in this coalition who have challenged the policy of the government. Other elements, I don't have to name them, the whole house aware. Who there? No, you can't force me to name them. You know them as well. You can't force. He has not named. He has not named anybody. Please. There are. You know this, Mr. Balu, as well as I do. And therefore, my first point, Madam Speaker, is this, that unless there is unity of purpose in the government, unless there is determination for resolute action, unless there is complete identity of purpose, we will not win this war. We will not win this war. And Dantewada will not be an isolated incident. In fact, it is not. In fact, this morning, you yourself, madam, proposed that we mourn the deaths of 11 other policemen in Nagari. And I have here a list of all the incidents in which large number of policemen have been killed from time to time by the Maoists in various operations. दांतेवाड़ा, अरे भाई ये चर्चा होने दीजिए। अरे नक्शे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे क्यों खड़े हो जाते हैं? सुनो तो क्या बोल रहे हैं। मैडम दांतेवाड़ा में जो घटना घटी वो कितनी गंभीर थी, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकती हैं कि 3 घंटे तक 80+ स्ट्रांग फोर्स के ऊपर आक्रमण होता रहा। 3 घंटे तक चला। 3 घंटे तक हमारे जवान मुकाबला करते रहे, मारे जाते रहे। उन्होंने सहायता के लिए संदेश भेजे। हमारी तैयारी इतनी अपूर्ण थी कि 3 घंटे तक हम उनको कोई सहायता नहीं भेज पाए। 3 घंटे तक रायपुर में हेलीकॉप्टर खड़ा है। क्यों हेलीकॉप्टर नहीं गया? उनकी मदद के लिए, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए। 3 घंटे वो मारे जाते रहे और जब वह पूरा क्षेत्र उनकी लाशों से पट गया और जब माओवादियों ने महसूस किया कि अब उनके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं बची है, तब वो आए और उनके जितने हथियार थे उसको उन्होंने कैप्चर किया। सारे हथियार कैप्चर कर लिए। उन हथियारों में इस तरह के बहुत घातक हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, स्पेशल बुलेट्स हैं,
जो रक्षा जैकेट को पार करके लोगों की जान ले सकते हैं, भारी मात्रा में माओवादियों के हाथ में उस तरह का एम्युनिशन मिल गया है और उसी एम्युनिशन का वो उपयोग करेंगे बाद में हमारे सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारने के लिए। इसलिए इतनी गंभीर घटना घट गई। आज 10 दिनों के बाद यह सदन मिल रहा है पुनः। 10 दिनों में सरकार चेती नहीं, 10 दिनों में गृह मंत्रालय से एक स्टेटमेंट भी तैयार नहीं हो सका। आज के Naxal is not a state subject. Please sit down. You don't know anything. You meet your home minister. He will tell you. मैडम, जब आज का ऑर्डर पेपर हम लोगों के पास पहुंचा तो हम सब यह उम्मीद करके बैठे थे कि उसमें निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख होगा कि गृह मंत्री बयान आज सदन में इतने बजे देंगे। कोई जिक्र नहीं है आज का ऑर्डर पेपर। इतनी बड़ी घटना घट गई और कोई जिक्र नहीं है। सरकार को क्या सुओ मोटो स्टेटमेंट देने की तैयारी पहले से नहीं करके रखनी चाहिए थी? कर रहे हैं। अभी यहां पर क्या ये छोड़ देना चाहिए विपक्ष के ऊपर कि हम सब यहां पर उठ के शोर मचाएं और तब सरकार जागेगी, चेतेगी और तब कहेगी कि 1 बजे स्टेटमेंट देंगे? हम तैयार होके आए हैं, चर्चा करने के लिए आए और इसीलिए जब ये सुझाव आया आदरणीय मुलायम सिंह जी की तरफ से कि हम लोग बिना स्टेटमेंट के ही चर्चा शुरू कर दें, हम उसके लिए सहज तैयार हो गए। सरकार तैयार हो गई, चर्चा शुरू हो गई, लेकिन गृह मंत्री अपने स्टेटमेंट के साथ तैयार नहीं है। बताइए। नहीं, बात क्यों नहीं है? बात यह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों को भी, मैडम, आप अपने संसदीय दायित्वों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये है शहीदों को, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग शहीद हो गए उनका अपमान हो रहा है। जो लोग शहीद हो गए उनका अपमान हो रहा है। मैडम, मंत्री टोक रहे हैं। मैडम, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर टोक रहे हैं। बताइए, ऐसे पार्लियामेंट चलेगा? इनको ट्रेनिंग कराइए। इनको आप बैठिए ना, आप तो बैठिए। वो क्यों टोक रहे हैं? बैठिए, बैठे रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, टोक रहे हैं। आप बैठ जाइए, बैठिए, 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 आप बैठ पार्लियामेंट्री जाइए। अफेयर मिनिस्टर कर रहे हैं। Just sit down. Yes. मैडम, आप इसमें भी राजनीति करेंगे। आई वुड लाइक टू, जवान शहीद हुए, कम से अरे इतना कम माओवादियों के खिलाफ लड़ते तो अच्छा होता है। मैं इस सदन के साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं और वो आंकड़े मेरे नहीं हैं, गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से मैंने ये आंकड़े लिए। वो आंकड़े क्या दिखाते हैं? सन 2004 से लेकर सन 2009 तक 6 वर्षों में 4,246 lives have been lost in this country in Maoist incidents. 4,246 lives have been lost. People have been killed, including security forces. Swami understood. Out of these, 2,524 lives have been lost only in 2 states, Chhattisgarh and Jharkhand, which is my state, madam. More than 50% of the people killed have been killed only in these 2 states in the last 6 years. Compare this with the lives lost in various wars, Indo-Pak wars. 47 to 49, we were fighting Pakistan in Jammu and Kashmir. How many lives were lost? 1,500. In 1965, how many lives were lost? 3,000. Only 1971 war,
we lost 5,300 soldiers. And in Kargil war, we lost only 522 lives. Only 522. It was about 700, 1,700 or so in the IPKF operation in Sri Lanka. अब इन आंकड़ों से भी अगर हमको गंभीरता का एहसास नहीं होगा तो फिर क्या किया जाए? देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि माओइज्म जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक बयान है। गृह मंत्री जी का बयान आता है, हम सहमत हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें इसका जिक्र होता है। लेकिन जहां तक कार्रवाई का सवाल है, उसमें स्थिति क्या है मैडम? अब आप देखिए कि जब ये सरकार पहले अवतार में आई तो एक संदेश भेजा, बहुत खतरनाक संदेश पूरे देश को। वह था कि हम टेररिज्म से समझौता करने को तैयार हैं। हर प्रकार के आतंकवाद से हम समझौता करने को तैयार हैं। ये संदेश गया क्यों? राजनैतिक लाभ के लिए आपने हाथ मिलाया उन सब लोगों से जिससे आपको चुनाव में फायदा हो सकता था। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के साथ आपने समझौता किया। इन्हीं पार्टी का खड़ा हूँ, लेकिन जसवंत सिन्हा जी जानते नहीं इनकी सरकार का वहाँ क्या वास्ता रहा है। इनकी सरकार का, इनकी अपनी सरकार का माओवादियों के साथ क्या रिश्ता रहा है वहाँ, उसका जिक्र करते थोड़ा। मैडम, इनका अपना रिश्ता क्या है माओवादियों के साथ? यहाँ बात और करते हैं, वहाँ उनके साथ मिलके और बात करते हैं। और अगर उनके प्रति कुछ लिखा गया, उसके प्रति इनको कंटेम्प्ट है, उनके प्रति इनको कंटेम्प्ट है, उनके प्रति इनको कंटेम्प्ट है। अगर वो बात लिख दिए, एक तो उनका अपना विचार था, एक सत्य लिखा गया, इनका सरकार का क्या ताल्लुक है उनसे? उसके बहुत बढ़िया, देश देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं आपको, देश के लोग देख रहे हैं। लेकिन फिनिश, अब आप समाप्त करिए। All this will not go in record. You will have a chance to speak. Now next will be your chance to speak. Next will be your chance to speak. Let him finish. अब आप समाप्त करिए। Next will be your chance to speak. Then you say whatever you have to say. अब आप बैठ जाइए। अब अगली दफा, अगली बारी में आपकी है। ठीक है, अगली बारी आपकी है, उस समय आप अपनी बात कहिए। सोला जी, क्या हो गया आपको? कहाँ बोला बरसाइएगा? अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। What does he want? लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोनिया बैठी है ना, बंदे ने कहा है ना सब
किया था आपको? समझौता तो ओपन हुआ है। अरे बैठ के आराम करिए, तब शोर मचा लीजिए। मजा ले रहे हैं। बैठो नहीं, बैठेंगे थोड़ी है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए, उस वक्त फिर आपकी बारी है। आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप तो क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठ जाइए, बैठिए। तो ये कि एक तरफ तो सपोर्ट की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं। जबकि असलियत ये है, जबकि असलियत ये है, जबकि मैडम असलियत ये है कि इनके जो सदस्य हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो मेंबर्स बने हैं, जिनको इन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने ये काम किया है वहाँ। Honorable members, we are discussing something very serious, very tragic, which has saddened all of us. Yes, please sit down, please sit down, please sit down, please sit down, please sit down. This is not the time and this is not the debate when allegations should be leveled. This is the time when all of us, all the parties, should put their heads together to ensure how we can eliminate such incidents in future. Now I would request honorable members that let him continue and finish. 1 minute. Whatever next is your, yes. Just 1 minute. Let me finish. Yes. I will just tell him. I'll tell him. Please. Yes. I will. Please sit down. Please. I know. Yes, please sit down. Please sit down. आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए। आप बैठ जाइए। प्लीज, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। बैठ जाइए। प्लीज sit down. आप निरुपम जी बैठ जाइए। I would request you, Mr. Yashwant Sinha ji, to please not level allegations which you are not able to substantiate. No. Yes. Please, you. Now. Yes. I will. Yes. Now. Don't get so agitated. आपकी बारी जब आएगी, आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए। आपकी बारी इसके बाद आने को है। जिस बात पर आपको एतराज है, जो आपको स्पष्ट करनी है, आप बैठिए, बिल्कुल बैठिए। जो बातें आपको स्पष्ट करनी है, जिन पर आपको एतराज है, वो सब आप उसमें कह सकते हैं। अब कृपया आप इस बहस को चलने दीजिए। आप बैठ जाइए। हाँ, शुरू हुई। ठीक है, बैठे। अरे अभी तो शुरू हुआ, अभी तो और मिर्ची लगेगी। मैडम, अभी तो कुछ मैं तो ये निवेदन करूंगा, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगले जब भी किसी विषय पर चर्चा हो,
आप कृपया हम लोगों का स्पीच लिख के हमको दे दीजिए, हम उसी को पढ़ दिया, नहीं पढ़ दे दीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं वही बोले तो आप बोलवाना चाहते हैं, आप नहीं हमको फोर्स कर सकते, कोई हमको नहीं फोर्स कर सकता, हम वही बोलेंगे जिसको मैं सत्य मानता हूँ, जनता की आवाज बोलेंगे, पब्लिक की आवाज, जो कि राष्ट्र हित में है, पब्लिक की आवाज। बैठ जाइए। हम वही बात बोलेंगे। अब आप बोलिए। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठिए, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठ जाइए। इसको बाहर निकालिए मैडम। आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। मैडम मेरी बात प्लीज सुनिए। सिट डाउन। हम लोग, मैं झारखंड से आता हूँ और रोज खेलता हूँ, बैठ जाइए। रोज खतरे से खेलता हूँ। आप लोग क्या बात करोगे? बैठते एयर कंडीशन चेंबर्स में और बात करोगे? एयर कंडीशन चेंबर में बैठे हो नक्सलिज्म को, आप ये महाबल मिश्रा Please sit down, दिल्ली में please sit नक्सलिज्म का down. मुकाबला, मैं मुकाबला कर रहा हूँ नक्सलिज्म का, आप क्या कर रहे हैं? बात करते हैं यहाँ पर। बैठ जाइए। पूरा देश देख रहा है। महाबल मिश्रा जो हैं, ये नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं दिल्ली में। बैठ जाइए। ये मंत्री है, ये नारायण स्वामी मंत्री है, ये मंत्री है, बताइए, मंत्री क्या तरीका है इस तरह से? मंत्री मिलेगा इसका एक तरीका है। ये मंत्री मिलेंगे इसका। The House stands adjourned to meet again at 1 p.m. Honorable members, I've gone through the records. I find that the word "tuch" used by Shri Yashwant Sinha during his speech is undignified, and I have accordingly removed it from the records. Now, Shri Yashwant Sinha. मेहरबानी करिए, उनको बोलने दीजिए, नहीं बेटे, नहीं, अब आप लोग शांत हो जाइए, कृपया प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ जी। बिहार में चक्रवात से 100 लोग मरे, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कोई राहत का बचाव का काम नहीं। भारत सरकार टीम भेज के बंगाल और ठीक है बिहार के इलाके में अररिया, जी हाँ, अब ये उनको बोलने दीजिए। ठीक है, सैकड़ों लोग मरे। भारत सरकार ठीक है, जी हाँ, उस पर होना चाहिए। बाढ़ में कुछ नहीं भेजवाइए। ठीक, इसलिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। ठीक, बैठ जाइए। इतना आग लगा है, सो भी मदद करनी चाहिए। ठीक, मैडम, अपनी सीट इधर रख। मैं ये कह रहा था कि अगर माओवाद से लड़ने की नीति में स्पष्टता नहीं होगी, अगर उसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में मात खाते रहेंगे। अब हाल की ही घटना लीजिए, गृह मंत्री महोदय कभी कहते हैं मैं बातचीत करने को तैयार हूं, कभी कहते हैं बातचीत नहीं होगी, कभी कहते हैं कि ये मेरा टेलीफोन नंबर है, माओवादी नेता कहते हैं ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इस पर बात करो। मतलब ये सारा कुछ एक मजाक बन के रह गया। टेलीफोन नंबर्स पब्लिकली एक्सचेंज हो रहे हैं और इसी बीच में कभी कड़क से कड़क बयान आता है जो पहले की बात से मेल नहीं खाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हो गया, बहुत चर्चा हुई ऑपरेशन ग्रीन हंट की।
ऐसा लगा कि जो लोग ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ नहीं है वह दोषी है और जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ हैं वही सचमुच में लड़ना चाहते हैं। किसी और ने अगर बात की कि बातचीत होनी चाहिए तो उसकी भर्त्सना की गई। भारत सरकार अगर वही बात कहे तो सही, कोई राज्य सरकार की तरफ से उस प्रकार की बात आए तो वो गलत। दो मापदंड, दो स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन ग्रीन हंट, मैडम, मेरा मानना है कि बिना पूरी तैयारी के शुरू की गई। इसमें जिस तरह राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए था वह काम नहीं किया गया। गृह मंत्री महोदय गए, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, अन्य लोगों के साथ बैठकें की, ये जरूर की उन्होंने, लेकिन ऑपरेशंस जो हैं दे आर प्लान्ड एट अदर लेवल्स, दे आर नॉट प्लान्ड एट द होम मिनिस्टर्स लेवल, एट द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक्चुअल ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी प्लान्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स हु आर इन चार्ज। उसके लिए जो पूरी तैयारी करनी चाहिए थी वो पूरी तैयारी कहां है? अगर पूरी तैयारी हुई होती ऑपरेशन ग्रीन हंट में तो मेरा दावा है कि दांतेवाड़ा चाय की कभी भी घटना नहीं घटी होती, नहीं घटी होती, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की। बैकअप क्या होगा उसकी बात नहीं है, संवाद कैसे जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, मेडिकल असिस्टेंस कैसे मिलेगा अगर ट्रूप्स अंडर फायर आते हैं, इसकी जितनी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए थी उतनी डिटेल प्लानिंग नहीं हुई। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं कि मैं भी एक नक्सली प्रभावित राज्य से आता हूं, झारखंड से। आप भी आती हैं एक नक्सली प्रभावित राज्य से मैडम। मैं बहुत समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिताता हूं, कहीं पर भी ऑपरेशन ग्रीन हंट कहां हो रहा है मुझे नहीं नजर आता है, चाहे वो भारत सरकार की फोर्सेस हो या राज्य सरकार की फोर्सेस हो। क्या है ऑपरेशन ग्रीन हंट? Will somebody stand up in this house and tell us what is this Operation Green Hunt? Correct. How it is being planned? How are the states being taken into confidence? What is the kind of coordination which has been established with the state governments? चले गए 1962 में चीनियों से लड़ने चले गए, बिना मोजा और जूता पहने हमारे सिपाही मारे गए वहां पर। दांतेवाड़े की घटना ठीक उसी प्रकार की है, बिना तैयारी के अपने जवानों को झोंक देना, मौत के घाट उतरवा देना, किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कोई मामूली घटना हमारे इतिहास में नहीं है। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, यहां पर मैं सुन रहा था कुछ सदस्य कह रहे थे राज्यों का मुद्दा है। सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है, यह हम गंभीर गलती करेंगे अगर कोई भी सदन में बैठा हुआ सदस्य यह सोच ले कि यह राज्य सरकारों का मसला है और राज्य सरकार निपट लेंगे। झारखंड निपट लेगा झारखंड में, लेकिन हमारे यहां से भाग के छत्तीसगढ़ में जाएंगे तब। छत्तीसगढ़ निपट लेगा छत्तीसगढ़ से, वो भाग के जाएंगे उड़ीसा में तब। उड़ीसा निपट लेगा, वो भाग के जाएंगे आंध्र प्रदेश में तब। वो भाग के जाएंगे बिहार में, वो भाग के जाएंगे उत्तर प्रदेश में, भाग के जाएंगे महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में तब। ये कोऑर्डिनेशन किस लेवल पर होगा, ये कौन करेगा, किस प्रकार ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इन सब की जानकारी इस सदन को होनी चाहिए। बार बार बयान आता है द बक स्टॉप्स हियर, द बक स्टॉप्स एट माय डेस्क, द बक स्टॉप्स हियर देयर एवरीवेयर। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, इफ द बक स्टॉप्स इट स्टॉप्स विद दिस पार्लियामेंट। हम लोग सब इसके लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, उसमें कभी हमारी फतेह नहीं होगी। पूरे सदन को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देयर मस्ट बी ए वेरी क्लियर मैसेज which should go out that we are all united. But before the House sends that message, it is incumbent on the part of the government to stand up and say absolutely unambiguous terms में कि हम सब यूनाइटेड हैं इस लड़ाई के पीछे। हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं पूरे मनोयोग से। और अगर ये नहीं होगा तो न राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा,
न पीपल के साथ जो हमें करना चाहिए कोऑर्डिनेशन वो हो पाएगा, और कोई भी ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, ऑपरेशन ब्लैक हंट हो, ऑपरेशन रेड हंट हो, कुछ भी होगा उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम मैडम, हाल के दिनों में दांतेवाड़ा की घटना के बाद मीडिया में लेख छपे, टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया गया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, एलीट फोर्सेस किस हालत में रह रहे हैं अपने कैंप्स में, जब हम जानते हैं कि माओवादियों का अटैक उनके ऊपर होगा। कैंपों पर अटैक हुआ कि नहीं हुआ? यहीं छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के ऊपर अटैक हुआ है। हमारे यहां बिहार में जेल के ऊपर अटैक हुआ है, जहां जेल के ऊपर अटैक करके वो ले गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के ऊपर अटैक होता है, थाने के ऊपर अटैक होता है, जो जितने पुलिस के ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक होता है। और हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि किस हालात में हमारे सेंट्रल फोर्सेस के जवान आज के दिन जीने को विवश हो रहे हैं इन कैंप्स में। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और डाल दिया वहां पर उनको। क्या यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी हमें देंगे, उनकी थोड़ी बहुत हम चिंता करें? हमारे दूसरे साथी यहां पर बोलेंगे, लेकिन ये जितने लोग मारे गए हैं, मैं जानना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि ये जितने लोग मारे गए दांतेवाड़ा में, उसके पहले क्या उनके घरों से संपर्क किया गया? क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति गया वहां पर उनके पास, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए? क्या उनको मुआवजे की राशि मिल गई? क्या उनको उनके आश्रितों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है। एक शब्द इसके बारे में मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि कोई गया भारत सरकार की ओर से ये कहने के लिए कि हम बहुत दुखी हैं, हमें तकलीफ है, हमें अफसोस है कि आपके परिवार का सदस्य मारा गया। जिस तरह हमें इन जवानों के परिवारों के साथ आज के दिन खड़ा होना चाहिए, हम सोचें अपने गिरेबान में झांक कर कि क्या हम ये काम कर रहे हैं। और मैं अंत में कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन उस सुझाव देने के पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत तरह का स्यूडोइज्म चलता है। अब कुछ स्यूडो लिबरल्स हैं, उदारवादी हैं, माओवादियों का समर्थन करते हैं। छद्म जो अपने को लिबरल इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बेचारे चिदम्बरम साहब यहां नहीं है, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री को शायद नहीं कहना चाहिए था कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस के शिकार हैं, लेकिन देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हर बात में मानवाधिकार जोड़ते हैं। ये जो 76 लोग मारे गए, उनके मानव अधिकार के बारे में क्या एक भी लिबरल ने बोला? सो कॉल्ड लिबरल इन दिस कंट्री, एक आदमी ने नहीं बोला। एक आदमी ने जाकर उन परिवारों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। लोगों का गर्दन काट दिया जाता है, अंग काट दिए जाते हैं, रोजमर्रा इस प्रकार की घटना हो रही है। मैं पिछली बार इस सदन में ही बोल रहा था, मेरे अपने क्षेत्र में हमारा एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, रात को अपने घर लौट रहा था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। 1 सेकंड देखिए, यही आतंकवादी नहीं, सिन्हा साहब जितने भी आतंकवादियों के द्वारा या कारगिल युद्ध में या कश्मीर में आतंकवादियों से आज तक डेड बॉडी आई है, पार्थिव शरीर के साथ नहीं तो शमशान पे उसके दाह संस्कार में मैं शरीक हुआ हूँ। सहानुभूति
उनके प्रति दिखाई है और सहानुभूति ठीक ठीक, धन्यवाद सहानुभूति नहीं, धन्यवाद जो हमसे मदद हो सकती थी वो मदद की है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके लिए धन्यवाद सब करें। हाँ प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इसलिए मैडम, मेरा ऐसे प्लीज प्लीज छद्म उदारवादी जो हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना होगी कि वो अपना मशवरा अपने पास रखें। देश को उनके मशवरे की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा था सुझाव, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आजकल चाहे वो स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, जिस तरह एक ड्रिल करने की परंपरा थी पुलिस में समाप्त हो गई। ड्रिल ही नहीं करता है कोई, जो ड्रिल करता है वो चुस्त दुरुस्त रहता है। पेट निकले हुए ऐसे, बेल्ट यहां आ रहा है नीचे, ऐसे पुलिस में नक्सलियों से लड़ेंगे? चांदमारी नहीं होती। हमारे यहाँ अभी हाल में झारखंड में मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ सिपाहियों को कहा गया कि, और पदाधिकारियों को भी कहा गया कि चांदमारी करो, निशानेबाजी करो, अगर टारगेट इधर है तो गोली उधर जा रही है। AK-47 से बताइए, AK-47 ये लेवल है अगर पुलिस का, ट्रेनिंग का। तो धीरे धीरे क्या हुआ है? धीरे धीरे ये हुआ है कि राज्य सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से निर्भर हो गई हैं सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर। सेंट्रल फोर्सेस जाएंगी तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई होगी, नहीं जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। पुलिस अपनी सुरक्षा करने में भी अक्षम है, और इसीलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक दिन में नहीं। ये कई महीनों वर्षों चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जाए। हमारे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब आडवाणी जी थे तो इनके समय में हम लोगों ने एक स्पेशल फंड शुरू किया था उन स्टेट्स की मदद करने के लिए जहां पर कि माओवादी, ये नक्सलाइट खतरा था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, क्या हम देखते हैं कि कितने राज्यों ने इसका लाभ उठाया, किस तरह लाभ उठाया? हमारे ध्यान में तो इस तरह की बात आती है कि अगर कोई घटना घट गई और आप जाइए थाने में कहने के लिए कि घटना घट गई, आप चलो, तो वो कहता है कि पहले हमारा पेट्रोल दो, डीजल दो, गाड़ी में भरो, मोटरसाइकिल में भरो, तब वहां जाएंगे। इस पुलिस फोर्स से हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? इसलिए मेरा गृह मंत्री महोदय से, सरकार से पहला अनुरोध होगा कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, वेल ट्रेन करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, उसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, उनके पास इक्विपमेंट क्या है? उनके पास व्हीकल्स हैं? कहीं पर इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, कहीं पर व्हीकल्स नहीं है, जल्दी पहुंच नहीं सकते हैं। मैंने कहा 3 घंटे तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर आक्रमण दांतेवाड़ा में होता रहा और हम कोई सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए। तो इक्विपमेंट क्या है उनके पास? नक्सलियों के पास, माओवादियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। हम उसका मुकाबला कर सकते हैं 303 के राइफल से, और कभी कभी वो 303 राइफल भी वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, फंस गया राइफल। एरिया डोमिनेंस, आप शांत रहिए। मैडम, मैं कह रहा था एरिया डोमिनेंस अप्रोच। Large areas of this country in the Maowadi areas are in their control. वहां न पुलिस जाती है, न वहां प्रशासन जाता है, वहां पर उनका शासन चलता है। तो एरिया डोमिनेंस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? कितना हम अंदर जाने को तैयार हैं, कितना घुसने को तैयार हैं?
और ये राज्य सरकार की फोर्सेस से नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूं इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स को ही लगाना पड़ेगा। उनको जाकर वहां पर अच्छे कैंप्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। वहां पर जाकर उनको पूरे एरिया की में जो डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के, अपना प्रभुत्व एस्टैब्लिश करने के लिए जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन एक ही बात का ध्यान रहे कि उसमें लोग एलियनेट नहीं, वहां के लोकल लोग अगर एलियनेट होते हैं तो उसका दूसरे तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिना लोगों की लड़ाई में शामिल हुए हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए पीपल्स कोऑपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब पीपल्स कोऑपरेशन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जब कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं से ये खबर छपवाई जाती है कि इंटेलिजेंस वॉज प्रोवाइडेड, इंटेलिजेंस वॉज अवेलेबल। उस पर एक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्ट किया? वॉज इट रियल टाइम इंटेलिजेंस? वॉज इट एक्शनेबल इंटेलिजेंस? ये सब बातें देखनी पड़ेगी ना। मैं ये कह रहा हूं कि माओवादियों के पास हमसे ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस है। उनको सारी बातों की खबर है जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में। और जब तक ये इंटेलिजेंस की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे तब तक हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। और इसीलिए चाय की दुकान पर बैठ के इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस वाले बैठे हैं, कहाँ है साहब? चाय की दुकान पर बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। हम गए, किसी ने गप मार दिया, रिपोर्ट भेज दिया, यही इंटेलिजेंस है? दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग इलाके में जब जाते हैं तो उनका जो खुफिया तंत्र है वो काम करता रहता है। अचानक एक व्यक्ति उठ जाएगा, अचानक एक लड़की भाग के कहीं चली जाएगी, अचानक उनको सारी सूचना मिल जाएगी, सारी सूचना। मैं चुनाव में एक क्षेत्र में जाने वाला था और मैं अपने क्षेत्र के पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया कि मोबाइल पर बात हो रही है। और क्या बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कि यशवंत सिन्हा इस क्षेत्र में आने वाले हैं और उसने कहा आज इनका नगाड़ा बजा दें, नगाड़ा बजा दें, आईईडी लगा दें। वहां पर सड़क में अगर वो एक्सप्लोसिव लगा देंगे उड़ जाएगी गाड़ी। हम लोग तो बुलेट प्रूफ में भी नहीं ट्रैवल करते हैं। और थैंक्स टू द होम मिनिस्टर, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन कुछ तकलीफ के साथ कह रहा हूं, 1988 में आई केम इनटू दिस पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अदर हाउस। 1988 से लेकर अभी हाल तक आई हैव ऑलवेज हैड सिक्योरिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइम that my security has been completely withdrawn by the government of India. Completely withdrawn. I don't care. नक्सलाइट एरिया के एमपी का भी। I don't care. I am not even demanding, and I am telling the government through you, madam, in very clear terms. If they provide security, I will not accept it. उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं हो, कोई बचाव नहीं करेगा। अगर बचाव होगा तो मैं अपनी किस्मत से बचूंगा। अपनी किस्मत से अगर आज तक बचता आया हूं तो बचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई दूसरा मेरा बचाव नहीं कर सकता। और हम सब कह रहे हैं, वो लिबरल्स कहते हैं पॉलिटिशियंस को भेजो नक्सल एरिया में, भेजो। अरे हम लोग तो रहते हैं वहां पर, रोज रहते हैं। वो नहीं रहते हैं तो वो जाएं, वो जाते हैं एक दिन के लिए और एक्सपर्ट बन के नक्सलिज्म के ऊपर, माओवादी के ऊपर घूम कर आकर बड़े बड़े लेख लिखते हैं। हम लोग रोज रहते हैं, रोज वहां पर जान को जोखिम में डालकर अपने इलाकों में घूमने का काम करते हैं, जनसंपर्क करने का काम करते हैं। ये उन क्षेत्रों का हाल है जिन क्षेत्रों में हमारे जैसे लोग राजनीति करते हैं। और इसलिए मैं यहां पर दिल की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं, कोई अखबार की बात नहीं, दिल की बात बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई सुरक्षित नहीं आज के दिन। दांतेवाड़ा की घटना के बाद सुरक्षा की भावना समाप्त हो गई इस देश में, और उस समय तक नहीं लौटेगी जब तक कि हम इस खतरे के ऊपर काबू नहीं पा लेते हैं। अब ये हम अपना सारा का सारा सहयोग सरकार को देने को तैयार हैं। क्या सहयोग चाहिए? सरकार कहे, इस सदन में कहे, नेताओं को बुलाकर दूसरे दलों के साथ बातचीत करे,
सहयोग हम देने को तैयार हैं, लेकिन एक्ट तो सरकार को करना पड़ेगा ना, एक्शन हमारे पार्ट पर नहीं होगा, ये इनको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, देयर इज ए नीड टू फॉर्मलाइज द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड periodical meeting of the cadre officers of the central paramilitary forces with the Home Minister to review the professional matters relating to internal security of the nation. ये नियमित समय पर इस प्रकार की बैठकें गृह मंत्री को करनी चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं, गृह सचिव को भी नहीं, गृह मंत्री अपने स्तर पर इन बैठकों को करें। A panel of retired central paramilitary officers could be formed to think and advise on matters of internal security for the nation. बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जिनको की बहुत अनुभव है, उनको अगर ड्राफ्ट किया जाए तो उनके अनुभव का लाभ हमको आज के दिन मिल सकता है। वो बता सकते हैं कि और क्या हमको तैयारी करनी चाहिए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए। Experienced central paramilitary forces officers should be placed in the Ministry of Home Affairs to process the various proposals of the CPMF which have been bearing on the functioning of these forces. उनकी चिंता कौन करेगा? जो IAS ऑफिसर बैठा है वो चिंता नहीं करेगा, उनकी चिंता उस फोर्स का जो पदाधिकारी है वो करेगा, और इसलिए उस फोर्स के लोगों को बैठाओ गृह मंत्रालय में ताकि उन फोर्सेस की वो चिंता कर सके। A transparent command and control system need to be made functional so that every 5 units, over every 5 units, there is an officer of DIG rank to supervise and monitor the functioning of the unit, and over every 15 units, an officer of IG rank is placed to supervise their functioning so that operational and tactical lapses could be avoided while planning and executing the anti-Naxal operations. अब उनका एक तरीका है, क्या तरीका है? तरीका है कि वो आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उसमें वो एक्सप्लोसिव प्लांट कर देंगे। अब तो वो पक्की सड़क के नीचे भी एक्सप्लोसिव प्लांट करा हुआ मिलता है, रोड बनाते समय ही वहां पर दबा के रख दिया गया। अब उस समय आप जा रहे हैं, आप बुलेट प्रूफ में भी जा रहे हैं, तब भी वहां जब एक्सप्लोजन होगा तो आपकी गाड़ी का वही हाल होगा जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था, गाड़ी उड़ जाएगी आसमान में, आप गिर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो दांतेवाड़ा में उन्होंने किया, वो चुन चुन कर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते। ये पैटर्न है, इस पैटर्न का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई टैक्टिकल काउंटर मूव नहीं है, ये मूव प्लान करना होगा। A career planning and management cell for constables, SOs and officers should be established to ensure timely promotion, filling up of vacancies in the field and desirable performance level after due training. सिपाही क्या जिंदगी भर सिपाही रहेगा? तरक्की कैसे करेगा? बाकी लोग जो हैं वो turn is coming after this. बैठ प्लीज 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 प्लीज, आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए, आप बैठ, अभी आ रहा है, आपकी बारी आ रही है। Madam, a healthy, effective and viable joint functioning of state and central police officers need to be evolved so that officers of matching seniority are able to plan and work together in a cohesive fashion. ये जहाँ तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है, और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। होम मिनिस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई करने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जनता का सहयोग लेने के लिए हमको वहाँ विकास की धारा बहानी पड़ेगी। जिन जिन इलाकों में माओवादियों का वर्चस्व है वह सब इस देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब इलाके, सबसे पिछड़े, सबसे गरीब इलाके, जिस परिस्थिति में वहां के लोग जीते हैं,
शायद हम लोग इस सदन में बैठकर उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। जिस गुर्बत में वो रहते हैं, पीने का पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, और फिर माफ करेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव में बिजली पहुंच गई आपके कागजों में। और मैंने कहा था कि जब वो मेरा कार्यकर्ता मारा गया, मैं वहां पर उस गांव में गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उतना अंधकार नहीं देखा है जितना उस इलाके में देखा। दूर दूर तक एक ढिबरी भी नहीं, एक रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। पूरा इलाका दहशत, और बिजली पहुंची हुई है गांव में। ये जो जमीनी स्तर पर दुनिया भर के विकास के काम हो रहे हैं, जिनका पैसा वहां पर जा रहा है, जब तक उसमें भ्रष्टाचार होता रहेगा तब तक आप नक्सलवाद और माओवाद से मुकाबला नहीं कर सकते। कोई अस्पताल नहीं, बीमार पड़ा तो बीमार वो कहीं उसका इलाज नहीं हो सकता है। किस तरह की जिंदगी में वो नक्सली बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा उग्रवादी? क्यों नहीं बनेगा अतिवादी? बनेगा क्योंकि उसके पास जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कहीं प्रकाश की क्षीण किरण भी नजर नहीं आ रही है। इसलिए मेरा अंतिम सुझाव, अंतिम आग्रह इस सरकार से क्या है? वो जो 32-33 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं 9-10 राज्यों में, आप उनके लिए विशेष विकास की योजना बनाओ। हर जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए विशेष विकास की योजना। आपको अगर उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करना है तो करिए। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं। मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए पैसे देने में कहीं कोताही मत कीजिए। वहां सड़कें बनाइए, वहां पर बिजली की व्यवस्था कीजिए, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, वहां पीने का पानी दीजिए, वहां पर हॉस्पिटल